current of the order of, let us say, my few microamperes or few milliamperes is flowing in a circuit, and you wish to find or detect whether the current is flowing or not. Okay, so galvanometer is such a sensitive instrument that it can detect even the slightest of current. The construction of it is based on the principle that if a current carrying coil is placed in an external magnetic field, then it experiences a torque. It tries to align itself. The current carrying coil has a magnetic moment. That magnetic moment tries to align itself in the direction of the external magnetic field. This is analogous to the case of an electric dipole trying to align itself in the direction of external electric field. So how it works, that all we will see in the magnetic effects of current later on. This is the next chapter. But for us right now, what is of concern is that if a current is flowing, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना अभी, you see the top view of, you are seeing the top view of galvanometer. तो ये नॉर्थ एंड साउथ, दीज आर द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. यहाँ पे एक cylindrical cavity है between the poles in which a cylinder is embedded. Okay, तो ये जो cylindrical आयरन पीस है, उस पर हमने रेक्टेंगुलर कॉइल्स वाइंड करके रखी हुई है. ठीक है, तो ये बेसिकली इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, अगर इसको साइड से देखोगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसमें हमने ऐसे वाइंडिंग कर रखी है. आ रही बात समझ में? तो एक वायर गया, ये ऐसे टर्न करके क्लियर आ रहा है. ठीक है, so large number of turns of coils are wound on the iron coil. ठीक है, so iron core पे large rectangular windings हैं. When current flows through it, there is a magnetic moment associated with it. That magnetic moment tries to align in the direction of the external magnetic field. वो external magnetic field कौन produce कर रहा है? ये north and south pole produce कर रहा है. So the moment current flows, it tries to align. इसका पॉइंटर इसके एक्सेस से कनेक्टेड है. ठीक है, तो अगर कॉइल टर्न करेगी तो ये पॉइंटर भी टर्न करेगा. तो इसका जो टर्निंग इफेक्ट होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. We will not go into the quantitative aspect of how it works, but now we have a fair enough idea of how a galvanometer is responding to even the slightest of current. Okay, so it depends on the strength of the magnetic field, it depends on the current, it depends on the number of turns of the coil. So there are so many other factors. Okay, so basically now you should know at this stage is that galvanometer behaves, it can detect even the slightest of current. Is it clear? And this is the scale. Okay, now this scale is what we calibrate in different situations. How do we calibrate? हमको इसका कंस्ट्रक्शन पता है. ठीक है ना, हमने इसको कैसे डिज़ाइन किया है वो मैन्युफैक्चरर को इसका आइडिया होता है. तो मैन्युफैक्चरर नोज कि इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने करंट पे आएगा. ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं FSD. क्या बोलते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन. So what is the value of maximum current through the galvanometer? ठीक है, for which FSD will be there. Now we calibrate this scale based on the requirement. अगर हमने इस galvanometer को modify करके एमीटर में कन्वर्ट किया है या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया है, what we will do is we will just change the scale. Instead of it reading IG, that is current through the galvanometer, it can read current through the circuit I, or it could read potential difference across the 2 points in the circuit.
दैट इज V। तो हम इसके स्केल को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है, टू कन्वर्ट इट। नाउ व्हाट इज एन एमीटर एंड हाउ डू वी कन्वर्ट a galvanometer into an ammeter? ठीक है, so that is given here, just read it, ठीक है, don't write anything, I'll explain it in detail, just read it। पढ़ लिया सर। अब देखिए हम क्या करते हैं, एमीटर बनाने के लिए, एमीटर का होता क्या है सिचुएशन, ठीक है, कोई एक सर्किट है, ठीक है ना, तो सर्किट के अंदर के करंट को हमें मेजर करना है, ठीक है, ये ध्यान से सुनिए। सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है ना, लेट मी, लेट्स से ऐसा ही कोई सर्किट है, ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसका ईएमएफ कुछ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 कुछ है, या R2 कुछ है, लाइक दैट you have different complex situation and you wish to find out what is the current through this circuit। तो यहाँ पे आप एक एमीटर कनेक्ट करोगे, क्या करोगे, एक एमीटर। एमीटर is always connected in series in the arm in which you wish to find out the current, ठीक है ना। तो ये एमीटर, इसके अंदर करंट कुछ भी जा सकता है, इट कुड बी 2 amperes 3 amperes, but galvanometer is designed to read current only in milliamperes or microamperes because it's a very sensitive instrument. If in that instrument you pass 2 ampere of current or 3 ampere of current, the coil of the galvanometer will burn out. It will become a destructive measurement. So now we have to modify the scale and the same galvanometer to read the current in the external circuit, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग गैल्वेनोमीटर को ही यूज करना है, और इसके अंदर जो करंट जा रहा है IG, on the basis of this IG we have to calibrate the current in the circuit, मेन सर्किट। तो हम क्या करते हैं, एक शंट यूज करते हैं, एस इज नथिंग बट शंट। शंट इज समथिंग विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल, the resistance of the shunt is much less than the resistance of the galvanometer, is it clear? So this current I which is flowing in the external circuit, you wish to measure with the help of the known values of G and S, okay। So these 2 points will have the same potential difference across the galvanometer, which is same as across the shunt. Now this current divides into 2 parts, IG and I minus IG. So I minus IG times S will be equal to IG times G। हुआ कि नहीं होगा?
So from this now you can find out I. What is I? Ig G plus S upon S, right? And generally S is much less than G. So this current I is nothing but I times Ig times G by S. So ideally what you do is you try to increase this ratio. With this ratio should be at least 1000 or 10,000 like that. G by S ratio should be 1000 and 10,000 times. So अगर मिली एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा, you can read the current in this circuit. आपको क्या करना है, सिर्फ कैलिब्रेट करना है, G by S से मल्टीप्लाई करना है. Is that clear? This is how a voltmeter, oh sorry, emitter is worked out. ये लिख लीजिए, इतना पोर्शन लिख लीजिए. सर हाँ बोलो बेटा. आपने जो आई की वैल्यू निकाली उसमें आई जी इंटू जी प्लस वन नहीं आएगा? मतलब आपने आई की वैल्यू निकाली आई जी इंटू जी प्लस एस बाय एस, उसमें एस की जगह मतलब जी प्लस वन नहीं आएगा? अरे यार देखो, इस इक्वेशन को तुम क्या लिखोगे, आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी प्लस जी. फिर इस टर्म को उस साइड ले जाओ. हाँ सर हो जाएगा. ये इक्वल टू हो गया, ये प्लस हो गया, फिर आई जी कॉमन ले लो तो जी प्लस एस आ गया, फिर एस को उधर ले लो. समझ में आ गया? यस सर. दिस इज व्हाट इज, ये एक्चुअल है इक्वेशन. दिस विल ऑलवेज वर्क, ये जनरल इक्वेशन है. दिस इज अ स्पेसिफिक केस व्हेन एस इज मच लेस देन. लिख लिया सर. अब देखो, हमको अगर किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है ना. सपोज करो ये डायग्राम दिखा रखे हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम इज देयर, लेट अस से, and across the 2 points in the circuit, these 2 points are A and B. You wish to find out the potential difference. That means this is some kind of a load, or some circuit element. The circuit element could be a resistor, it could be a cell, it could be a battery, it could be a capacitor, it could be an inductor, anything. So you wish to find out what the potential difference across the two ends A and B is. ठीक है ना. तो अब आपको क्या करना है कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जो एक्सटर्नली करंट फ्लो कर रहा होगा आई, उस करंट के अंदर से आपको एक छोटा सा सेक्शन, वेरी स्मॉल करंट आउट ऑफ इट यू हैव टू ड्रॉ and use that current to detect the potential difference across the two ends. ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आपको पता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा, ये ए और ये बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, जो इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस है. बट हमको बहुत फीबलेस्ट ऑफ करंट ड्रॉ करना है. वी कैन नॉट, अगर ये जी की वैल्यू ये जो दे रखा है, दिस इज नथिंग बट योर गैल्वेनोमीटर, इसके साथ में हम एक मल्टीप्लायर कनेक्ट करते हैं. ठीक है ना, एक मल्टीप्लायर को हमको इसके साथ में ऐड करना पड़ता है इन सीरीज के अंदर, सो दैट इसकी रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है G plus N, it always tends to, it almost tends to infinity. It should be a very high value. Only a very small current should pass through it, because
इन दी पैरेलल अरेंजमेंट, देखो ये और ये वोल्ट मीटर, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी लोड, देन वेरी स्मॉल करंट विल पास थ्रू दी हाई रेजिस्टेंस आर्म। ठीक है ना, ये तुमको पता होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना कम करंट फ्लो करता है पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर। तो वी मेक यूज ऑफ दैट, क्योंकि इट सर्व्स द डुअल पर्पस। एक तो ये मेन करंट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। अगर यहाँ पे 1 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर में या 2 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर में से लेट्स से 2-3 माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर करंट इस सेक्शन में चला भी गया, तो इसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? 1 लाख रुपए में से एक रुपये 2 रुपये माइनस भी कर दोगे तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए ही रहेंगे ना। तो दैट इज वॉट वी वॉन्ट। The voltmeter should not ideally draw any current from the main circuit, but without drawing it cannot detect. So what it does is that voltmeter when connected, it draws a very feeblest of current. So what is the value of voltage I into R? Yes or no? Which is Ig into G plus M. Is that clear? So multiplier, this M is known as multiplier. Technically it is known as multiplier. Multiplier is connected in series with the galvanometer to make it voltmeter, and shunt is connected in parallel to the galvanometer to make it an emitter. आगे बात समझ में? तो ये इसका डायग्राम है, लिख लीजिए, फिर ड्रॉ कर लीजिए। दिस कॉम्बिनेशन इज वोल्टमीटर। समझ में आ रही बात कि नहीं? इस कॉम्बिनेशन को हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। तो अब हमें करना क्या है? वोल्टेज निकालने के लिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर, दैट इज आई जी जी प्लस एम। तो जी और एम क्या है वो हमें पता है, और आई जी बेस्ड ऑन आई जी, राइट? आई जी की जो वैल्यू है बेस्ड ऑन आई जी वी कैन फाइंड आउट, कैलिब्रेट कर देंगे हम लोग स्केल को। ठीक है, जी प्लस एम से मल्टीप्लाई करके, एंड इंस्टेड ऑफ एम्पियर इट विल रीड वोल्ट्स। तो हमको सिर्फ स्केल को कैलिब्रेट करना है। लिख लिया। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम योर पैकेज मॉड्यूल, वो हम लोग करते हैं। ठीक है ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट which passes 10% of the mean current?
हो गया? हो गया सर। चलो बताओ कैसे करोगे? जिसको रेज हैंड जिसको आता है। और किसी को नहीं आता? हरेन, हरेन, आर यू देयर? कहाँ गया हरेन? बेटा आता ही नहीं आता ये क्वेश्चन। श्रेय तुम बताओ कैसे करेंगे? सर हरिन का मैसेज आया, उसका माइक नहीं चल रहा है। अच्छा। श्रेय 10% ऑफ द इनिशियल करंट मतलब 10 आई ले लेंगे हम. Let's say the initial current is I, total current is I. Then we can say it is 10%, so 10I. क्या 10 है? आई का 10% 10 आई कैसे होता है? वो तो 10 टाइम्स आई होता है। सर 11 हो मैं आंसर। 11। हेलो सर, आंसर 11 हो मैं। हाँ सही, 11 होगा। कौन बोल रहा है? अनिरुद्ध। हाँ अनिरुद्ध, बोलो बेटा कैसे किया? सर वो 10% ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर से पास करता है तो I/10 हो जाएगा, और बाकी 9I/10, तो उसका जो रेशियो ले लेंगे वो शंट रेजिस्टेंस अपॉन 99 ओम आ जाएगा, तो R अपॉन 99 इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, तो ये करंट आई है। इट इज सेइंग दैट 10% ऑफ इट, मतलब I/10 इज गोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। Rest of the current 9I/10 will go through the shunt. Now the potential difference across the two should be same, or current is dividing in the inverse ratio of the resistances, right? तो इसका रेशियो कितना है करंट का? G/S will be equal to 9/1 है ना? ये करंट का रेशियो 9:1 है ना, तो योर शंट विल बी G/9 which is 11 ohms। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं।
एनीवन? देखो ये वोल्ट मीटर वी रेंज का है, ठीक है ना. A galvanometer has a resistance of G ohm and range of V volt. Calculate the resistance to be used in series with it to extend its range to NV volt. इसका मतलब क्या हुआ कि पहले गैल्वेनोमीटर ही कनेक्टेड है, तो इसमें जो मैक्सिमम करंट जा सकता है दैट इज लेट अस से IG. ठीक है, IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. ओके, और ये IG इंटू जी इज V. ये मैक्सिमम कितना वोल्टेज डिफरेंस बताता है? V वोल्ट है, क्योंकि इसका रेंज लिखा हुआ है V वोल्ट, मतलब 0 से V वोल्ट ये रीड कर सकता है. Now I want to connect another resistor in series with it so that, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेते से M है और ये G है. Now this galvanometer scale will be calibrated. Instead of reading V, it will read NV. NV किसको रीड कर रहा है? इन दोनों के टोटल के पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसमें से मैक्सिमम करंट जो है FSD का ही है, दैट इज IG. इतना ही रीड कर सकता है. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज दिस. उसमें से V यहाँ पे ड्रॉप होगा तो n-1 V यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए. देन ओनली टोटल विल बी V NV. आया कि नहीं आया समझ में? तो अगर इसका रेजिस्टेंस G है तो इसका रेजिस्टेंस n-1 G होगा कि नहीं होगा? बिकॉज सीरीज में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस. तो यहाँ पे रेशियो कितना है? n-1:1. तो यहाँ पे भी n-1:1 का रेशियो आ रहा है. This is your answer. You have to connect this much resistance in series. Any doubt? ये बताएगा कैसे करेंगे? विधि तुम बोलो बेटा, कैसे करेंगे विधि?
देखिए इसमें आपको है ना क्या दे रखा है, दो डेटा दे रखे हैं विच इज इम्पोर्टेंट. फर्स्ट इज आपको दे रखा है 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर. ठीक है, करंट सेंसिटिविटी मतलब 100 इक्वल डिविजन्स है. फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब 100 divisions, and if I find out its sensitivity, so 1 division per 1/10 of a milliampere आएगा. और मेरे को अगर टोटल फुल स्केल डिफ्लेक्शन चाहिए तो 10 मिली एम्पियर करंट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा. So this is the maximum value of current that can flow through it. Now second data is, ये समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट. 10 डिविजन पर मिली एम्पियर, तो 100 डिविजन के लिए 10 मिली एम्पियर जाना चाहिए. और इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है? 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट है ना. तो मैक्सिमम 50 मिली वोल्ट रीड कर सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में. और एक डिवीजन के लिए करंट कितना जाता है? 1/10 ऑफ अ मिली एम्पियर जाता है. तो दिस डेटा वी हैव अंडरस्टूड. ठीक है, तो 1 डिवीजन के लिए current that can flow through it is 1/10 of a milliampere. Now you want to convert this into a emitter which can read 5 amperes. Full scale deflection में 5 read करेगा. तो तुम्हें क्या करना है, देखो ध्यान से देखना. पहला पार्ट करते हैं हम. फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. इधर पे गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे शंट है. ठीक है ना. तो 5 मिली एम्पियर में से 5 एम्पियर में से 10 मिली एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा. And almost 5 ampere current will flow through the galvanometer. Almost. Yes or no? Otherwise, अगर तुम बहुत स्पेसिफिकली लिखना चाहते हो तो गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा 5 माइनस 1/100 और शंट में से जाएगा 1/100 ऑफ अ एम्पियर. है ना. 10 मिली एम्पियर को मैं 1/100 ऑफ एन एम्पियर लिख सकता हूँ. तो ये कितना हो गया? 500 माइनस 1 इज 499, 4.99. और यहाँ से कितना जाएगा? 0.01 ampere current. Is that clear? Now the ratio of G by S will be what? G by S का रेशियो क्या होगा? इनवर्स ऑफ इट. होगा कि नहीं होगा? पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस का रेशियो का इनवर्स इज द रेशियो ऑफ देयर करंट. तो कितना आ जाएगा G by S? एक्चुअली सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया. ये S के थ्रू जाएगा और ये G के थ्रू जाएगा, आई जी. तो ये आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर? ये लिख लो, फिर बी पार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन में. Join immediately. Don't wait for another 2-3 weeks.